Anybody having any doubt in the political dimension, please write it down in the chat box. If you don't have any doubts, let's start with the next dimension. And what comes after political is economic. Although इसका कोई sequence नहीं है जो हम follow करना चाहते हैं या follow कर रहे हैं, but still हमको नाम याद रखने में ये आसान रहता है, तो इसीलिए हम इसी sequence को भी follow करेंगे. Okay. Okay. So let's move on to the next dimension. I think everybody can hear me clearly. Everybody can see the screen clearly. There is no problem, no visibility issues, no problem in the connectivity, voice related issues. किसी को कोई issues नहीं है. So let's start with the next environment dimension, and which is our economic environment dimension. Okay, so economic environment, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, any factor or any force which is going to showcase that if the economy is changing in any manner, what change is going to be, what change or what opportunity or what threat it is going to put across for the organization is what is to be covered in the economic environment. Let's understand it with an example. Okay, so if I say the inflation level is going high, and अगर inflation बढ़ती है तो जो organization जिस भी तरह का raw material use करके manufacture कर रही है product को, उसकी cost भी बढ़ेगी. और अगर आपका cost of production बढ़ेगा organization का, तो उसका end result क्या होगा? दो चीजों पे, या तो आप अपनी selling price को बढ़ाएंगे और या फिर आप आपकी profit margin को reduce कर लेंगे, right? So either of the way, that means अगर आपके पास competitor ज्यादा हैं जो आपके साथ ही उसी industry में operate कर रहे हैं, so you can nowhere touch the price of the product in which you are dealing. So in case of high inflation rate, due to which the cost of the production is going high, or it is increasing, in that case it is to be taken into consideration that we will be reducing our profit margin, because touching of selling price is not possible for us. Okay, and I have just received 3 messages regarding the same thing. So Shaksham, it is your happy birthday dear. आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा. Stay home, stay safe, and celebrate it with your family and friends over the phone, right? Okay, so let's continue with the topic now. So this is one of the example that I was giving you. Similarly, एक और example के through हम इसी economic environment को समझते हैं. मान के चलते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आपके बताए जाते हैं कि क्या होंगे उसमें चेंजेस. तो अगर हम देखें कि इंटरेस्ट रेट्स को बैंक्स कम कर देती हैं लंबे समय के लिए, तो आपको पता चलेगा कि उतने ज्यादा लोग लोन को अवेल करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, मतलब लोन बेस्ड प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम. तो अब आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम हुई है अभी, और हमारे पास रियल स्टेट डेवलपर्स काफी सारे हैं जो काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं और लॉन्च कर रहे हैं, तो अब लोग खरीदना चाहते हैं और वो लोन अवेल करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन which has come up in the economy right now. तो वो उसका एडवांटेज कैसे लेंगे? By taking up loan and purchasing the properties, right? So this is in one way that the developers, the real estate developers, are going to get benefited by the reduction in the interest rates for the long run, right? So this was some of the example through which I wanted you to understand that if there will be any changes in the economy, if it will happen, so it may create an opportunity or threat for the business operation. So that is what has to be studied in the economic environment. And when we say economic environment, so we are basically going to take care of the forces which are related to the economy and how it is going to affect the economic condition of our business.
And economic condition means we're talking about the productivity, we are talking about the profit levels, we are talking about the sales, right? So these are the factors which we are going to cover. Okay, so let's read it. Economic environment refers to those forces that have economic impact on the business activities. Okay, I've just received a request कि अभी किसी ने क्लास ज्वाइन की है किसी बच्चे ने और आप कह रहे हैं मुझे कि अब मैं रिपीट करूं. बच्चे अभी हमने भी इस टॉपिक को अभी शुरू किया है, सो डू नॉट वरी, आपका कुछ भी छूटा नहीं है एज सच, और बाकी जो कुछ छूटा भी है तो हम फिर से उसे पढ़ लेंगे. अभी हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं. सो एवरीबॉडी लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. ओके, so economic environment has a very strong influence over the policies of the business. ये क्यों लिखा गया है? Because इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसा भी शिफ्ट होगा, यानी कि जिस भी तरह के चेंजेस आपके इकोनॉमी में आएंगे, उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. और वो क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, दैट दे आर द ब्रॉड गाइडलाइंस, राइट? तो अगर वो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो पॉलिसी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लान, काइंड ऑफ अ प्लान विच इज यूज, जो अभी आपने नहीं पढ़ा है पर मैं बाद में पढ़ाऊंगी. पर फिलहाल आप ध्यान देंगे कि पॉलिसी भी एक तरह का प्लान होता है, एंड दे आर द गाइडलाइंस बेस्ड ऑन विच द प्लान्स आर मेड. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक पॉलिसी है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वो क्रेडिट सेल्स नहीं करेगी. तो क्रेडिट सेल्स नहीं करने की वजह से क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी बैड डेट एज अ लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट? पर उसी के ऑपोजिट ये रही एक अपॉर्चुनिटी. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अब आपके पास वही मार्केट अवेलेबल है, या आप ऐसा कहें कि आपको जो आपका क्रेडिट मार्केट है उसको कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज वो जो आपके कस्टमर्स हैं जो क्रेडिट में परचेज करते हैं, वो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं रहना चाहेंगे, राइट? तो ये रही पॉलिसी का एक एग्जांपल. अब जो पॉलिसीज हैं, आपने जो प्लान्स को बनाने के लिए यूज की है, वो अगर इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस आ रही है, तो वो ही सेम इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे भी, आपके बिजनेस के प्लान्स पे भी पड़ेगा. पर अगर हम इसको ओवरऑल समझे, तो फिर वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही क्यों, आपका चाहे पेस्टल में कोई भी इन्वायरमेंट डायमेंशन हो, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल, हर किसी डायमेंशन का, हर किसी इन्वायरमेंट फोर्सेस का आपका इम्पैक्ट तो बिजनेस पे पड़ता है, और इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं. और जब वो इसका इम्पैक्ट इस बिजनेस पे पड़ता है, तो आप ये देखिए कि उसकी वजह से हमारे प्लान्स को, हमारी पॉलिसीज को मॉडिफाई करना ही होता है, राइट? अदरवाइज अगर बिजनेस के ऊपर इस एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई इम्पैक्ट ही ना हो, तो फिर उसको हम स्टडी ही क्यों करेंगे, राइट? उसको स्टडी करने का रीजन है कि जो भी आपके एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, in some way or the other, indirectly it is going to affect the business plans and policies, and the plans and policies are required to be modified according to the changes which are taking place, right? So यही समझाया गया है आपको सेकंड पॉइंट में. नेक्स्ट पॉइंट इज it represents, just a second class. Okay, so let's start again. It represents the type of economy and its condition. That means your economy can be a developed economy, an underdeveloped economy, a developing economy. Based on the process which it is going through, we can always see and understand that what will be its condition, and accordingly what it is going to offer to us. So based on the current scenario of the economy, what is the future of that economy, and accordingly what threat or what opportunity can it pose to our business is going to be understood while studying the economic environment, right? So it represents the type of economy and its condition. Therefore any change in it has a far reaching effect on the productivity and other aspects of the business. So basically, if there will be any change in the business, if there'll be any change in the economy, it is surely going to affect the business also, directly or indirectly. But most probably it is going to affect the indirect part only. That means the business will get affected, but it can always take care of the changes which is going to happen in the economy, and based on that the plans can be modified. Okay, now next is components of economic environment. When we say components,
So if you'll see, the basic components are like interest rates, inflation rates, changes in the disposable income of the people, stock market indexes, then the value of rupee. अब अगर हम ये सब चीजों को देखें जो यहाँ पे सामने हमको दिख रहा है, ये सामने जो आपको सारे फैक्टर्स या कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये सब आपकी इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो जो चेंजेस वहां होंगे उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो ही हमको स्टडी करना है. सो इफ आई एम एबल टू सी द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, तो आप समझिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है तो हम देखते हैं कि जो आपके प्रोसेसेस होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, राइट. तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई तो प्राइवेट सेक्टर का रोल्स बढ़ा दिए गए. दैट मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर की इंडल्जेंस थी, जो उसका स्कोप था इकोनॉमी के अंदर, वो बढ़ाया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी के डेवलपमेंट लेवल्स इंक्रीज हुए, राइट. उसके अलावा हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी जीएनपी. तो जीडीपी और जीएनपी आप इकोनॉमिक्स में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं. तो जीडीपी एंड जीएनपी इज बोथ ग्रोथ गोइंग टू रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, अगर अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, so that means that economy is flourishing. So if economy is flourishing, it is showcasing that economy में जो लोग contribute कर रहे हैं, whether it is a primary sector, secondary sector or tertiary sector, it is all flourishing. Only then the growth of the economy is possible in totality. Then inflation rate means आपका क्या rate of inflation अभी चल रहा है economy में. If it is high, then it will lead to the increase in the cost of various items, and if it is low, then what benefit that the organization is going to get, it is basically focusing upon that. Then consumer income, what is that income which consumer is deriving, और उसके basis पे वो कितना consumable income रखता है, मतलब कितना वो disposable income के form में use कर रहा है for the purpose of consumption, कितना save कर रहा है, कितना invest कर रहा है, right. तो ये सब चीजें हमें समझ में आती है कि if he is going to invest it, so it is going to take a form of capital formation. That means he's going to contribute to the economy in the capital formation process. If he is using it for the purpose of consumption, then also he is contributing by consuming the products which the organizations are producing. Next is rate of saving and investment. मैंने अभी भी आपको बताया. Then volume of export and import. It is always expected that our exports should always be higher than the imports, right? अगर आप export ज़्यादा करेंगे तो आपको पेमेंट रिसीव होती है, और अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है. और जैसा कि हम लास्ट ईयर 11th में पढ़ चुके हैं कि जो भी हमको पेमेंट करनी होती है वो हमको उसी कंट्री की, जो जिसने हमको इंपोर्ट किया है उसी कंट्री की करेंसी में पे करना पड़ता है. और उस केस में रुपी की वैल्यू का एक बहुत प्राइम रोल आ जाता है. तो अगर रुपी की वैल्यू कम रहेगी तो हमको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसी की वजह से हमको कई बार हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट भी फेस करना पड़ता है. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. द नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस. तो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस का मतलब होता है बेसिकली कि ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी इकोनॉमी हमारी लो रेट पे ग्रो कर रही है या नेगेटिवली ग्रो कर रही है, ऐसा मान लेते हैं. तो अभी अगर आप ये सिचुएशन देखिए और बताइए मुझे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक्स हैं उसकी जो प्राइसेस है, चाहे हम बात कर रहे हैं एनएससी की या बीएससी की, उसके जो स्टॉक्स जो दिख रहे हैं, जो शेयर्स दिख रहे हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, उनकी प्राइसेस क्या दिख रही हैं आपको? इट इज ऑल फॉलिंग, राइट. इसी वजह से आप देखते हैं कि अभी न्यूज में आता है आपको कि स्टॉक अपने बीएससी है उसने कई सालों का लो रिकॉर्ड टच किया, मतलब वो कई सारे सालों से जितनी लो नहीं गई थी उतनी लो वो चली गई है. तो वो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रही है, जिसकी वजह से द स्टॉक प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन. और इन सब चीजों को आपको और डिटेल में समझना है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम इसके लिए एक नई क्लास रखेंगे, एक सेपरेट क्लास रखेंगे, और उसके अंदर हम इसको और डिटेल में समझेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज देयर इज अ क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज को वापस स्टेबल कैसे करेंगे लॉकडाउन के बाद? देखिए, जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा तो इकोनॉमी जब ओपन होगी, तो अभी आप देख रहे हैं कि पार्शियली इकोनॉमी को ओपन किया गया है, मतलब कुछ सेक्टर्स जो आपके नेसेसिटी बेस्ड सेक्टर्स है उनको ओपन किया जा रहा है, सो दैट द इकोनॉमी रिमेन्स सेल्फ सस्टेनेबल. सिमिलरली आप जो भी सेक्टर देखिए, हर जो भी ये आपका ये जो वायरस का प्रॉब्लम हुआ है
इसको पैंडेमिक बोला जा रहा है. दिस इज नॉट समथिंग विच इज मेंट स्पेसिफिकली इन इंडिया, और इंडिया के अंदर ही कंटेन्ड है, ये ऐसा कहीं नहीं है. तो अगर हम देख रहे हैं कि एवरीवेयर दिस द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस करंटली विच इज हैपनिंग, तो ये हर जगह की इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट ही डाल रहा है. तो जब हम इसे रिवाइव करेंगे, व्हेन एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग, it will start progressing also, but the rate is going to be low than what we were progressing at. तो हम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेंगे. So whenever that we are going to come back into our original forms, so things will start progressing. Okay. अभी इसके अलावा मुझे बहुत सारे बच्चे और भी बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी. अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ रही होंगी, तो आप ये देखिए कि आपका सप्लाई चेन और बेहतर हो जाएगा, और जितना बेहतर होगा उतनी ज्यादा आपकी जो इकोनॉमी होगी वो फ्लरिश करेगी. क्योंकि हम जो भी ऑपरेट करते हैं, जो भी हम बना रहे हैं, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर the producers are sitting and manufacturing it at a separate place, and then the consumer is altogether at a different place. तो ये जो supply chain है, जो delivery channel है, उसको manage करना is again a very important role. So if it is getting managed in a proper manner, so the economy is going to flourish, right? Then money supply in the economy. Money supply के बारे में हमने देखा होगा कि कई बार monetary policies जो बनती है उसमें बताया जाता है आपका कि आपके बताया जाता है कि आपके जो ये है, आपके जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उसके अंदर आरबीआई को बोला जाता है कि आप मनी, आप अपना इसको निकालिए. मतलब आप जो अभी सारा लिक्विडिटी क्रंच आ रखा है, मतलब जो अभी पैसा नहीं है इकोनॉमी में, आप उसे फ्लो कीजिए, राइट? तो उसमें क्या होगा, उसमें सारे आपके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो होंगे वो कम कर दिए जाते हैं, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें और मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको दिख रहा है कि इकोनॉमी में मनी बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है और आपको लगता है कि अब उससे टाइम आ गया है कि उसे रिड्यूस किया जाए, तो सडनली द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. रेपो रेट, सीआरआर, ये सब चीजें जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हैं बच्चे, उसको अप्लाई कीजिए, बिकॉज दे आर द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. और उसी से हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी. देन इंटरनेशनल डेट. अभी आप देख रहे हैं कि आपको जो जितनी भी सारी कंट्रीज हैं उन सबको अभी जो ये इस तरह का मेडिकल इमरजेंसी फेस करनी पड़ रही है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये सारे फंड्स दे रहे हैं, राइट? फंड्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो इकोनॉमी इस सिचुएशन को हैंडल कर सके, इतनी रिसोर्सेज, इतनी फैसिलिटीज जनरेट कर सके जिससे वो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो जाए. So whatever money that they are giving, is it going to come given as a charity? No, it is going to be counted as in debt. तो ये सारा जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपको रिटर्न करना होगा, बट वो कब रिटर्न करना होगा, that will depend upon the terms and conditions that the countries are entering into. Similarly आप देखेंगे कि IMF भी जो है, या फिर आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं यहाँ से, अदरवाइज भी जब लॉकडाउन ये सब सिचुएशन नहीं होती है तभी इकोनॉमी कई बार लोन लेती है, जस्ट एज टू इंश्योर दैट द इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग. इकोनॉमी के पास अगर सफिशिएंट कैश रिजर्व नहीं है तो उसको चलाते रहने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, which is called as debt. Okay, now there is a doubt in the second point, which is rate of growth of GDP, GNP and inflation rate. Okay, GDP, GNP जैसे मैंने बताया, these are the factors which reflect the growth of the nation. और जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो नेशन की ग्रोथ होती है आपके 3 सेक्टर्स से, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट? तो आपका जो ये सेक्टर्स हैं, अगर आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट दिखाता है कि इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, तो उसके फ्लरिश करने का मतलब है कि आपकी जो वो सेक्टर्स हैं वो भी फ्लरिश कर रहे हैं. सो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट तभी ज्यादा दिखेगी जब इकोनॉमी ओवरऑल फ्लरिश कर रही होगी, राइट? नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन रेट. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन्फ्लेशन रेट अगर हाई रहेगा, so the cost of production is going to increase and vice versa, right? GNP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और इसका मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकाला जाता है, ये प्लीज आप इकोनॉमिक्स की मैम से पढ़ेंगे जाकर. आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे. आई थिंक that would be more important that we move further to the next examples of economic environment. Okay. Yes.
So these are some of the examples, but before that there is one more doubt. Ma'am, after lockdown is over, will the businesses such as real estates and all will go back to their normal form? मैंने आपको क्या बताया अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जो सेक्टर्स हैं जो अभी आपके इफेक्ट हुए हैं बैडली, वो सब सेक्टर्स रिकवर करेंगे, मगर उसको रिकवर करने में समय लगेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई चीज बिल्कुल बंद कर दी जाए सडनली और उसको ओपन करें तो वो बिल्कुल एकदम हाई स्पीड में ओपन होगी और फिर सब कुछ ऑपरेट करने लग जाएगा, वैसे ही ऐसा नहीं होता। सो एवरीथिंग विल टेक टाइम। जैसे अभी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि कहा जा रहा है कि इकोनॉमी को जो लॉसेस हो रहे हैं उसको रिकवर करने में लगभग 2024 तक का समय लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से सारे वर्ल्ड इकोनॉमीज इफेक्ट हुई हैं उनको रिकवर करने में कितना समय लगेगा। कुछ को कम लगेगा, कुछ को ज्यादा लगेगा, कितना लगेगा अभी कोई कुछ नहीं जानता। ये लॉकडाउन कितना समय तक रहेगा ये भी कोई कुछ नहीं जानता। सो लुकिंग एट द सिनेरियो, थिंग्स विल come back to its original shape and form, but everything will take time, right? तो अब इसके आगे हम इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हम डायरेक्टली इकोनॉमिक्स मैम को कवर करने के लिए कहेंगे। So let her cover the remaining factors. Now let's move on and let's do the examples of इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हाई इन्फ्लेशन रेट। सो हाई इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से आपके जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ी, उसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से द प्रॉफिट मार्जिन्स आर गोइंग टू रिड्यूस। द नेक्स्ट आपका एग्जांपल दिया है, इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। दैट मींस व्हेन द इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग, so the sectors are also flourishing and so the people are also flourishing. So everybody is flourishing, then the disposable income will increase। और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि जब आप उस इनकम को यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट्स होंगे जो अवेलेबल होंगे मार्केट में, now people will try, the organizations will try to offer you better products so that people can buy it, or people would consider buying it in the long run, right? The next is short and long term interest rates significantly affect the demand of the product and services। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लॉन्ग टर्म में आपके इंटरेस्ट को कम किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को, तो सडनली आप देखेंगे कि जो आपकी रियल स्टेट मार्केट की जो प्राइसेस होंगी, जो आपके जो परचेजर्स होंगे, that will increase because the people would like to take loan and buy the assets, right? So this here completes our economic environment. Now let's move on to the social environment. Okay, अब जो क्वेश्चन आएगा आपको केस स्टडी का, जैसे कि आपने देखा होगा अपनी वर्कशीट में, मैंने पहले भी बताया, मैं अभी फिर से आपको एक बार आपके लिए रिवाइज कर रही हूँ कि जो पिछले आपके वीक का असाइनमेंट था, वो जो स्लाइड्स पे गिवन था वो था असाइनमेंट आपका, प्लस जो मैंने आपको बोर्ड रिव्यू क्वेश्चंस भेजे थे उसके अंदर से जो जो टॉपिक हमने कवर कर लिया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे आपको वो ही सॉल्व करने हैं, राइट? इस वीक वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर environment dimensions as well as probably the demonetization topic and the LPG। so liberalization, privatization, globalization probably हम खत्म कर पाएंगे। तो जो भी हम जितना कवर कर पाएंगे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बेसिकली इस बार केस स्टडीज रहेंगी वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और वो जो आप सॉल्व करेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे आपके सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्लास में। सो आई वुड प्रेफर कि मुझसे बच्चे ये मैसेज करके नहीं पूछे कि मैम ये डायमेंशन लिखा है, क्या आंसर होना चाहिए इसका, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेक एन अटेम्प्ट एंड राइट डाउन द आंसर, राइट? व्हेन वील कीप अ डेट जिसपे हम उसको सारों को क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, बट जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, if I am telling you the answer, that would completely fail our purpose, so I would not like that to happen, right? तो आप अपने questions complete कीजिए। After that, I'll discuss each and every case study that will be there on all the questions related to environment dimension, because environment dimension पे हमको question case study के form में आएगा ही आएगा board में, and this is a must which we are going to get, right? So let's get back to the studies and let's start with social environment। तो social environment यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो social environment basically क्या बताता है? social environment बताता है हमारा कि हम जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं उसके अंदर किस तरह के उसका क्या वैल्यू सिस्टम है, उसमें क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या सोशल ट्रेंड्स हैं,
जो फॉलो हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या हमारे बिजनेस ऑपरेशंस पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, हमको सबको पता है कि सोसाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस. अब जिस सोसाइटी में आप ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी डायनेमिक, राइट? So if it is dynamic, we have to see that what all changes or what all threats or opportunity can it offer to us, right? So let's go through it. It describes the characteristic of the society in which the business firm operates. Social environment is dynamic in nature. Every environment is dynamic in nature. आप ये point कहीं भी लिख सकते हैं. And the management cannot ignore these changes if it wants to earn higher profit. Okay. So now the social forces include customs and traditions. So custom and traditions का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने यहाँ पे सामने लिखा है that it includes social practices that lasted for decades. ट्रेडिशन, हम ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, मतलब कोई चीज जो बहुत सारे सालों से सोसाइटी में फॉलो होती चली आ रही है और वैसी ही फॉलो होती आई है और होती रहेगी. एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. जैसे मान लीजिए कि आपके फेस्टिवल्स हैं, इंडियन फेस्टिवल्स हैं, बी इट होली, दिवाली, राइट, या फिर ईद. तो अब जितने सारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट हो रहे हैं, उन सब के टाइम पर किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड बढ़ जाती है. जैसे हम बात करेंगे तो आपकी दिवाली के अंदर स्वीट्स, राइट, और या फिर आपके फायरवर्क्स, ये सब की जो डिमांड होती है वो कंपैरेटिवली हाई रहती है एज कंपेयर टू द अदर सीजन्स. तो क्या हम मान सकते हैं कि इस तरीके की जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को जो इन चीजों में डील कर रहे हैं जो कि उस फेस्टिवल से रिलेटेड है, राइट? सो ट्रेडिशन वुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट that something which has been followed in the society from past long time and it will continue to be followed for a good number of years. तो अगर ये changes नहीं होने वाले हैं तो this is going to give a financial opportunity to the organizations which are related, which are providing goods and services which are to be used during those festivals. Okay, I think this is clear now. Next is values. So values means, okay, that session is going to time out in 10 minutes or so. Please connect again. Okay, next one is values. So values का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है मैंने, concepts that society holds in higher self esteem. Higher self esteem का मतलब क्या है यहाँ पे हुआ? That society, when we are talking about the society, when it is taking care of the individual freedom, right, then we are talking about social justice, right? And then equal opportunity should be given to both male and females, or rather to all the segments which are there in the economy. तो जब हम इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारी वैल्यूज है. वैल्यूज मीन्स जो हम होल्ड करते हैं एज अ बेस, एज अ प्रिंसिपल्स which should exist and which should be followed in an economy. अब जैसे मैंने बात की आपको कि there was a concept of glass ceiling जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर नंबर 2 में बताया था. तो उसके अंदर मैंने बात की थी आपको कि मेल और फीमेल जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनको सेम वर्क, सेम लेवल पे भी सेम वेज, सैलरी या वेजेस नहीं मिलती. तो ये सोसाइटी की जो वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट है, राइट? दैट मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग एट द सेम लेवल, बी इट दे आर रिलेटेड टू एनी कास्ट, कलर, क्रीड और जेंडर, they should be treated equally and should be paid equally if they are working on the same level at the same position for same hours and performing the same nature of a work, right? So that is what we call the principle of equity should be followed, and that is that is going towards the social value. That means we are following the social values or social principles. Next force is social trends. Okay, सोशल ट्रेंड्स बताते हैं हमारे कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या किस तरह के नए ट्रेंड्स सोसाइटी अडॉप्ट कर रही है जिसकी वजह से आपके बिजनेस के लिए थ्रेट या अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है. ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अभी हम देखते हैं कि पीपल आर गेटिंग वेरी हेल्थ कॉन्शियस. तो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से जो हमारे फिज बेस्ड कोल्ड बेवरेजेस थे उनकी जो डिमांड थी वो कंपैरेटिवली कम हो गई है. उसके अगेंस्ट जूसेस या हम ऐसी बात करेंगे कि जो भी हमारे मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई है.
even if they are expensive, people are preferring it, right? Similarly हम देखते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि मैकडोनल्ड जब आया था, तो मैकडोनल्ड आया था अपने प्रोडक्ट्स को साथ, क्योंकि मैकडोनल्ड यूएसए की कंपनी है, तो उनके प्रोडक्ट्स भी वही उसी कंट्री के हिसाब से थे जो कि लोग जैसा वहां कंज्यूम करते हैं. बट व्हेन दे एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट, दे फेल्ट दैट देयर इज अ नीड टू चेंज, and they changed themselves, their menu, according to the need and requirement of the Indian society, according to the need and demand of the Indian people taste. So their taste was paneer wrap, and then mac aloo tikki or mac veggie. तो ये सब जो चीजें चेंज हुई, वो मैकडोनल्ड में यूएसए में नहीं बिक रहा है, वो इंडिया में बिक रहा है. क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट के हिसाब से मैकडोनल्ड को चेंज करना पड़ा, so that it can take benefit of the people who are present in the host country, right? So this is what we can call as a trend, right? So these are some of the forces like customs and traditions, values and social trends. I suppose and I consider that there are no doubts to anybody in this slide. Let's move on to the next slide. Okay, so the next slide says the components of social environment and the examples to support the same. Okay, so some components are quality of life. Quality of life means we're talking about the lifestyle and the standard of living that we are following. So if we see that people are following the high standard of living, तो जो आप प्रोडक्ट ऑफर करेंगे वो कैसा ऑफर करेंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैच करता हुआ, यानी कि वो ज्यादा आपका हेल्थ ओरिएंटेड होगा, no matter how expensive it is, but it is going to be more of health oriented. Then it is going to talk more about what kind of a product can be a status symbol for any person. So that shows the quality of life that we are dealing with. The next is importance of women in workplace. Importance of women in workplace means we are talking about the values. That means that women should be given equal place in the organization. So there is kind of a reservation कि इतनी लेडीज, इतनी फीमेल्स काम करनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ये ऐसा हम नहीं कहेंगे कि इसको एज अ सेट रेगुलेशन बना दिया जाता है. कहीं कहीं पर गवर्नमेंट में हम देखते हैं तो ये एक रेगुलेशन भी है कि इतनी आपकी लेडीज होनी चाहिए, फीमेल्स इतनी होनी चाहिए, मगर हर जगह इसको एज समथिंग, एज अ जनरल प्रिंसिपल इसको फॉलो किया जाता है कि जितनी अपॉर्चुनिटी मेल्स को मिल रही है उतनी ही फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए. और इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट आती है, क्लास लिस्ट, उसमें हमेशा ऊपर लिखा होता है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, so as to understand that how many boys and how many girls, that is what is the ratio that we are following in any set of class that we have. Okay, next one हम देखेंगे कि अपना लिखा है attitude of customer towards innovation and lifestyle. If the attitude of customer towards innovation, that means towards the change in technology, is there, so that means that they are ready to pay higher prices to buy those products. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनोवेशन, मतलब हम रिलेट कर रहे हैं इसे टेक्नोलॉजी के साथ. तो इफ वी सी that there is something better which is available in the market, which has better upgraded features, so if a person is having a good lifestyle, is maintaining a good standard of living, that means he or she is ready to buy the product which the organization is offering, and which is of course of a higher price range, right? Next one is consumption habits of the consumer. मैंने अभी मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया, वो सेम एग्जांपल यहाँ पे यूज कर लीजिए. Next is education and literacy rate. So if the education rate is higher, and education and literacy rate is higher of any state of any country, तो आप देखेंगे कि वहां पर डेवलपमेंट की जो ग्रोथ रेट होती है वो कंपैरेटिवली हाई रहती है as considered to the other economies wherein the literacy rate is low. Next one is tradition and custom. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Then social attitude, rituals, culture, family structure, value, awareness of rights, works ethics, ये सब जो हम पीछे अभी forces डिस्कस करके आए हैं उसी के अंदर ये सब कवर होता है. So I'm not repeating this again. Let's move on to some more examples now. So demand example says demand for reservation of jobs for minority and women. मैंने अभी भी बताया आपको कि गवर्नमेंट जो अपनी पब्लिक अंडरटेकिंग होती है उसके अंदर आप ये देखेंगे कि देयर इज अ रिजर्वेशन, बट हर जगह प्राइवेट सेक्टर में भी ये रिजर्वेशन
नहीं होता, राइट. नेक्स्ट वन इज डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन द एम्प्लॉयमेंट विद मेन. ये मैंने आपको बता दिया. The demand for automatic machines and luxury. So this is what we are talking about, innovation. Then social movement to improve the education level of the girl child, जिसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जो आपकी प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिसमें कि 14 साल तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, जस्ट एज टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन द country. And if the literacy rate will increase, the progress will also increase. Next one is popularity in health and fitness trend. ये भी हमने बात कर ली. Then westernization of Indian culture with the opening of malls. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपकी ग्लोबलाइजेशन हुई और प्राइवेटाइजेशन हुई, जिसकी वजह से आपकी जो सारी एमएनसीज थी इंडिया में जब आए, तो इंडिया में वो नए प्रोडक्ट्स लेके आए जो कि लोगों के पास एक ऑप्शन बना खरीदने का. तो जितना ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, हम उतनी ज्यादा अपने कल्चर, अपने वैल्यू से दूर होकर दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते चले जाते हैं. दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिट है. क्यों? क्योंकि आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं और लोग खरीदने के लिए आपके तैयार है. मतलब पीपल आर डिमांडिंग दोज प्रोडक्ट्स व्हिच यू आर ऑफरिंग, no matter whether it is related or relatable to your culture, custom or not, right? But people are following that trend, that social trend which you are creating as an organization, right? So this was the component and examples of social environment. I hope there are no doubts to anybody. If there are any still, please write it down in the chat box. We'll take up the doubts first, and after, in less than 1 minute time, the session is going to sign out. So we'll connect again and do one more dimension today, and which is technological dimension. So that would be all for today. So we'll be completing 3 dimensions today. One is this economic, then social and technology. So in that manner, we'll be completing 4 dimensions. और एक हमारा रह जाएगा, वो हम कल करेंगे. Okay. Any doubt? Anybody? Please write it down. Okay. I suppose everybody is clear with all the concepts. So let's connect again in the next meeting today. Thank you, everyone.